Hello, my dear students. We just started discussing about the blood. We discussed the various composition of our blood, that our blood consists of plasma and the formed element. In the previous lecture, we discussed the composition of plasma, that our plasma, or we can say the blood plasma, contain different compounds such as water, amino acids, minerals, okay, vitamins, and so other substances like protein, gases. We discuss about all of them, that 50% of our blood consists of plasma, whereas 45 of which is consist of our formed elements, or we can say our cells. We discussed about all the plasma, what are its different compositions, water, plasma proteins, minerals, salt, nutrients, hormones, enzymes, gases, and so on. What are their functions in the plasma proteins? Okay. And then we discussed about our formed elements. There are basically three different types of cells that are present in our blood. Red blood cells, or we can also call them erythrocytes, white blood cells, which we call them leukocytes, and platelets. These platelets are also known as thrombocytes. Okay, we discussed about our red blood cells. हमने उनके बारे में डिस्कस कर दिया था कि किस तरीके से जो हमारे इराइथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी सिंथेसिस होती है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी क्या फंक्शन है, उनकी क्या लाइफ स्पैन है, और दीज रेड ब्लड सेल कंटेन हीमोग्लोबिन. Okay, hemoglobin is a part of our red blood cells. So we discuss about our hemoglobin. What is it? Discuss about the different types of hemoglobin, and then we discuss about the erythrocyte sedimentation rate. So let's continue. This is just a quick recap about our previous lecture. So now let's start discuss about our white blood cells. White blood cells, which are also known as leukocytes, are the important cells that are present in our blood, which plays a major role in the fighting against the pathogens, or we can say which play an important role in the immunity of our बॉडी. यानी कि जो हमारे ये ल्यूकोसाइट्स हैं या हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर इम्यूनिटी. दे आर आल्सो जनरेटेड थ्रू आवर बोन मैरो एंड सर्कुलेटेड इन आवर होल बॉडी. इनका नॉर्मल काउंट क्या है? 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है. ओके, सो this is about our leukocytes, which we also call them our white blood cells. अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जिस तरीके से हमारे इराइथोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, बट these are present in our leukocytes. यानी कि leukocytes have nucleus, but they don't contain hemoglobin. Okay, and the lifespan of our white red blood cell is 120 days. जो रेड ब्लड सेल थे उनका लाइफ स्पैन 120 दिन था, बट दी लाइफ span of our white blood cells is few hours to few days, except our memory cells. यानी कि जो इनके अंदर हमारे memory T cells और memory B cells हैं, they can live for many years, but all other white blood cells यानी कि different type के white blood cell हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है, it is about few hours to few days. Okay, and these major characteristic क्या है उनका, that these WBC leukocytes contain nucleus, but they don't have hemoglobin. Okay, what are their major function? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था. They combat pathogens. Okay, यानी कि किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री को जो है हमारी बॉडी में आने से रोकते हैं. Further discuss about our types of white blood cells. जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है. कि जो सेल्स हैं, अगर उनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, देन दे आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट. इफ दे डोंट कंटेन ग्रेन्यूल्स, देन दे आर नोन एज अग्रेनुलोसाइट. इफ ग्रेनुलोसाइट्स आर द स्पेसिफिक white blood cells, or we can say specific leukocytes which have granules in their cell.
in it, or agranulocytes which don't have granules in it. जो हमारे granulocytes हैं यहाँ के फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, eosinophil, basionophil, neutrophils, एंड अवर granulocytes यहाँ पे agranulocytes 2 तरह के होते हैं, monocytes और lymphocytes. Now we discussed about these types of WBC in a detail. तो ये देखिए वही है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि अग्रेनुलर और ग्रेनुलर, यानी कि बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. आगे जो हमारे लिम्फोसाइट्स है 3 तरह के होते हैं, टी सेल, बी सेल एंड एनके सेल्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दी our granulocytes. Granulocytes are the leukocytes which with the presence of granules in their cytoplasm, यानी कि वो ल्यूकोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में क्या है हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, we call them our granulocytes. या फिर हम इनको अनदर नेम से बुलाते हैं, we also call them as polymorph nuclear leukocytes, PNL. We call them polymorphonuclear leukocytes. They developed from the pluripotent stem cell from the myoblast. यानी कि जो हमारा स्टेम सेल है वो आगे फर्दर सब टाइप्स में आता है. तो मायोब्लास्ट से जो है हमारे आगे क्या 3 ग्रेनुलोसाइट्स बनते हैं. एंड वी बेसिकली क्लासिफाई आवर ग्रेनुलोसाइट्स कि उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं. 3 अलग अलग तरह के ग्रेनुलोसाइट्स हमने पहली स्लाइड में डिस्कस करे थे, कौन कौन से हमारे एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. तो हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं. ओके, जब हम उनकी स्टेनिंग करते हैं तो जोन से हमारे सेल्स जोन से डाई को स्टेन कर लेते हैं, तो उसके बेसिस हम उनको डिवाइड करते हैं. यानी कि ये जो है हमारे न्यूक्लियस है एंड देयर न्यूक्लियस आर मल्टीलोब्ड एंड देयर ग्रेन्यूल्स स्पेसिफिकली टेक अप स्टेन्स. ओके, अगर कोई सेल जो है एसिडिक स्टेन लेगा यानी कि रेड स्टेन लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अवर एसिनोफिल्स. ओके, उसको हम बोलेंगे एसिनोफिल्स, यानी कि इयोसिन डाई लेगा. ओके, अगर कोई दूसरा जो है एल्कलाइन मिथाइलिन डाई लेगा यानी कि एल्कलाइन डाई लेगा, तो यानी कि वो बेस है, तो वी कॉल देम एज अवर बेसोफिल्स. अगर वो दोनों डाई टेकअप करेंगे, इसिनोफिल भी और मिथाइलिन डाई भी, तो देन दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जो दोनों ही डाई लेंगे यानी कि जो न्यूट्रल है नेचर में. तो एसिनोफिल्स यानी कि जो एसिडिक डाई लेंगे, बेसिनोफिल्स जो क्या है बेसिक या एल्कलाइन डाई के स्टेन बनाएंगे, न्यूट्रोफिल्स यानी कि जो दोनों डाई के स्टेन बनाएंगे. तो इस तरीके से हम जो है इनको क्लासिफाई करते हैं. एंड आवर ग्रेनुलोसाइट्स आर स्पेसिफिकली दोज ल्यूकोसाइट्स व्हिच हैव granules in their cytoplasm. Let's firstly start with our neutrophils. Okay, neutrophils are the most abundant granulocytes, or we can say the most abundant white blood cells in our body. सबसे ज्यादा हमारे white blood cells के अंदर हम उनकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करें. नॉर्मल ल्यूकोसाइट कितना होता है हमारी बॉडी के अंदर, 4000 से 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब. अगर हम उनकी फर्दर डिफरेंशिएट करें कि न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, एसिनोफिल कितने हैं या बेसिनोफिल कितने हैं, तो टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर 40 to 70% क्या है हमारे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट. दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे का इनका लाइफ स्पैन होता है. दे आर प्रीडोमिनेंट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर पस, यानी कि जब पस हो जाती है दीज न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट देयर इन लार्ज नंबर. Look at this figure, यानी कि neutrophils are specifically those which takes, ये देखिए मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस है, मल्टीपल लोब्स है. साइड में देखिए इनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. ओके, और इन दोनों ने क्या है ब्लू स्टेन भी लिया है और रेड स्टेन भी लिया है, यानी कि न्यूट्रल है, इन्होंने दोनों डाइस स्टेन ले लिए. ओके, द न्यूक्लियस इज 2 to 5 लोब्ड एंड साइटोप्लाज्म हैज वेरी फाइन ग्रेन्यूल्स. देखिए न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 4 से 5 लोब हैं. और सेल का जो डायमीटर है इट इज अराउंड 10 to 12 माइक्रोमीटर. देन वी हैव देयर फंक्शंस. द मेजर फंक्शन ऑफ आवर न्यूट्रोफिल्स इज दैट दे आर फेगोसाइटोसिस इन नेचर, यानी कि जो क्या है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. अगर कोई भी
माइक्रोब हमारी बॉडी पे अटैक होगा तो ये न्यूट्रोफिल्स के हैं उसको फैगोसाइटिक तरीके से जो है उसकी डेथ कोज कर देंगे, यानी कि सेल डेथ में मदद करेंगे। फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स इज फैसिलिटेटेड बाय ऑप्सिनाइजेशन बाय एंटीबॉडीज। क्या है, सेल को अपने अंदर एनगल्फ करके क्या है सेल डेथ कर देंगे, यानी कि कोई भी माइक्रोब आया तो ये न्यूट्रोफिल्स उसको अपने अंदर एनगल्फ करके क्या है उसकी डेथ कोज कर देंगे। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है इनका लेवल बेसिकली माइक्रोबियल इन्फेक्शन में, क्योंकि जब भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिकली इनका नंबर बढ़ जाएगा। ओके, ल्यूकीमिया में, इन्फ्लेमेशन में या टिश्यू डैमेज में इनका लेवल बढ़ जाएगा। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 2500 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, यानी कि हमारी बॉडी में 1 लीटर ब्लड के अंदर कितने हैं 2500 से 8000 न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। सो द सेकंड इज आवर एसिनोफिल्स। These eosinophils consist of only 1 to 4% of total white blood cells, यानी कि ये जो है एसिटिक डाई को जो है स्टेन कर लेते हैं। अगर आप देखिए जो इसके ग्रेन्यूल्स हैं दे विल टेक अवर एसिडिक डाई, यानी कि जो साइड में आप फिगर में देखते हैं तो ग्रेन्यूल्स देखेंगे दे विल टेक अवर एसिडिक डाई। ओके, eosinophil cells are basically small granulocytes which is produced in bone marrow। और वही हमने पहले डिस्कस करा 2 to 4 या 1 to 3% टोटल न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, यानी कि मल्टीपल लोब्ड की बजाय बाइलोब्ड है, यानी कि देखिए एक लोब और दो लोब, न्यूक्लियस दो लोब्ड में डिवाइड होता है। डायामीटर इनके सेल्स का कितना है 10 to 14 माइक्रोमीटर। ओके, ये जो एसिनोफिल्स है ना, these eosinophils are majorly found at the site of allergic inflammations, यानी कि एलर्जिक कंडीशंस में जो है इन ग्रेनुलोसाइट्स का जो हमारा नंबर है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारी अस्थमा में या कोई भी स्किन एलर्जिक कंडीशन है तो उनके अराउंड जो हमारे एसिनोफिल्स है इनका नंबर अपने आप बढ़ जाता है। ओके, तो इनका मेजर फंक्शन क्या है, दे आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। ये क्या करते हैं, दे बेसिकली रिलीजेस हिस्टामिन during the allergic reaction, it destroy parasites and neutralize histamine during the parasitic ingestion of allergic reaction, यानी कि जो हमारा हिस्टामिन है it is a specific type of inflammation mediator। ओके, तो उसको जो है ये क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि जो है ऑटोमेटिकली क्या है जो हमारी इन्फ्लेमेशन रिएक्शन है वो कम हो सके। तो ठीक है, these eosinophils are basically found in high allergic conditions, क्योंकि ये जो है हिस्टामिन रिलीज करते हैं और इम्यूनिटी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अगर हम सिंपली लिखे इनका फंक्शन ये है दैट दे कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाता है eosinophils क्या करते हैं उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। नॉर्मल वैल्यू 40 to 450 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 से 3% जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव आवर eosinophils। ओके, दीज आर बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स 1% होते हैं। सबसे कम अमाउंट हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर किसका होता है हमारे eosinophils का। दीज सेल्स टेक अप द ब्लू डाई, यानी कि जो सारे ब्लू कलर से हमें विजिबल होते हैं। दीज ग्रैन्यूल्स कंटेन्स हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन, यानी कि eosinophils के अंदर हमारे क्या है हमारे हिस्टामिन, ओके, हमारे हेपरिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन इज एन इंफ्लेमेटरी एजेंट, हेपरिन जो ब्लड कोएगुलेशन में मदद करता है और सेरोटोनिन इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज प्रेजेंट इन आवर बेसिलोफिल। ओके, फंक्शन क्या है इनके, these cells are best known for their role in asthma and result in inflammation and bronchoconstriction in the airway। तो यानी कि जो हमारे जो बेसिनोफिल है दे लिबरेट, यानी कि इनके ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है हिस्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं इनको रिलीज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन में, ताकि जो है
ओवरऑल इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम किया जा सके। ओके, यानी कि द कंटेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसिनोफिल्स आर रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एलर्जी हेल्पिंग टू फाइट आउट एंड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम रिएक्शन। यानी कि कोई भी एलर्जन आया, कोई भी माइक्रोब्स आया, तो उस टाइम हमारे हिस्टामिन रिलीज हो गए, उन्होंने क्या करा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर दी एयरवेज में, ताकि जो है वो एलर्जन आगे ना जा पाए, ब्रोंको में कंस्ट्रिक्ट हो जाए। ओके, तो इस तरह से जो है बेसिनोफिल्स जो है इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। बेसिकली इनकी वैल्यूज जो है 15 टू 100 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर के अंदर 50 से 100 बेसिनोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ आवर ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स एंड एसिनोफिल। यानी कि हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेन, की यानी कि जो डाई है कौन सा स्ट्रेन लेती है। इफ डाई टेक एसिडिक स्ट्रेन देन दे आर एसिनोफिल्स, यानी कि एओसिन डाई लेते हैं। इफ दे टेक बेसिक डाई देन दे आर बेसोफिल्स। इफ द सेल्स टेक बोथ द डाइज देन दे आर न्यूट्रोफिल्स। एंड ऑल these 3 types of granulocytes play an important role in the immunity of our body. न्यूट्रोफिल्स अपना प्ले रोल करते हैं, एसिनोफिल्स अपने तरीके से काम करते हैं, और हमारे बेसोफिल्स जो है अपने तरीके से काम करते हैं। तीनों के फंक्शंस जो है अलग अलग हैं, बट कॉमन फंक्शन क्या है, दैट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। यानी कि अलग अलग मैकेनिज्म से क्या है, इम्यूनिटी इम्पार्ट करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट आवर granulocytes. Then we have our agranulocytes. Okay, these types of leukocytes having a large nucleus but absent of granules. ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या थे, हमारे जो सेल थे उनके अंदर, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या थे, ग्रेन्यूल्स थे। और जो इनके न्यूक्लियस थे वो क्या थे, मल्टीपल लोब्ड थे, यानी कि बाइलोब्ड। ओके, मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियस थे। बट हमारे जो अग्रेनुलोसाइट्स है इनके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड नहीं है, वो सिंगल न्यूक्लियस है और लार्ज शेप सिंगल न्यूक्लियस है। एंड आवर दीज granulocytes are agranulocytes are further divided into 2 classes, monocytes and lymphocytes. Okay, so now we are going to discuss about our agranulocytes, यानी कि जिनके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे पहले इसमें हमारे क्या आएंगे, हमारे मोनोसाइट्स। ओके, मोनोसाइट्स, दीज आर दी लार्ज सेल्स, यानी कि जो लार्ज बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, यानी कि बहुत बड़ा न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। डायमीटर इज अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर। द न्यूक्लियस इज जनरली ऑफ हाफ मून शेप्ड और किडनी शेप, यानी कि कुछ इस तरीके का जो है इसका ये न्यूक्लियस होता है। अगर ये पूरा सेल है तो कुछ इस तरीके का जो है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, कुछ इस तरीके का जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी कि किडनी बीन शेप या फिर क्या है हमारा हाफ मून शेप। दे आर द गार्बेज ट्रक्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, हम इनको गार्बेज क्यों कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे इनके फंक्शन में। These white blood cells have a single bean shaped nucleus then referred as monocyte, यानी कि मोनोसाइट यानी कि एक सिंगल बीन लाइक शेप होते हैं, इसलिए हम इनको मोनोसाइट बुलाते हैं। मोनो मीन सिंगल, साइट मीन सेल, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस सेल, एक ही न्यूक्लियस है, लोब्ड कम है, बाइलोब्ड है या मोनोलोब्ड है, यानी कि एक ही लोब इसके अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर अभी आपके साथ शेयर करा। सो दिस इज अबाउट आवर मोनोसाइट्स। साइज क्या है इनका, 12 से 20 माइक्रोमीटर। सबसे बड़े सेल्स होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर, जो सबसे डायमीटर जिनका सबसे ज्यादा होता है, जिनका होता है हमारे मोनोसाइट्स का। ओके, तो लेट्स हैव द फंक्शंस। दीज मोनोसाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Okay, these mononuclear cells are originated from the bone marrow. Okay, ये क्या करते हैं, most of the important functions is to migrate into tissues and clean up dead cells, यानी कि क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं
ब्लड से टिश्यू के अंदर एंड क्लीन अप डेड सेल, यानी कि डेड सेल को क्लीन करते हैं, हमारी बॉडी को ब्लड यानी कि कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, और किस तरह से काम करते हैं हमारे, एक्ट लाइक अ मैक्रोफेज, यानी कि ब्लड से कहाँ जाते हैं हमारे टिश्यू के अंदर और वहां जाके क्या करते हैं, दे एक्ट लाइक मैक्रोफेजेस। और जो कुछ मोनोसाइट्स हमारे ब्लड के अंदर रह जाते हैं, द सम monocytes that remain in our body, they act like phagocytes, यानी कि क्या है, पैथोजन को ईट करके या एनगल्फ करके उनको क्या है, किल कर देते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, दे विल एक्ट लाइक मैक्रोफेज। ओके, तो यानी कि मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम की तरह ये काम करते हैं। ओके, और ये जब दोनों हमारे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फंक्शन क्या है इनका, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो मेजर फंक्शन है क्या होता है, हमारे मोनोसाइट्स हमारे क्या है, सेल के अंदर या ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। कुछ जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या होंगे, ब्लड से रिलीज होके किसी स्पेसिफिक टिश्यू पर चले जाएंगे, वहां पे जो डेड सेल्स हैं उनको साफ करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे पैथोजन से उस टिश्यू की। ओके, यानी कि वो क्या करेंगे, एक्ट लाइक अ मैक्रोफेज, यानी कि मैक्रोफेज बन जाएंगे। वहीं जो कुछ मोनोसाइट्स हमारे ब्लड के अंदर रहेंगे, दे विल एक्ट लाइक फैगोसाइटोटिक सेल्स, यानी कि क्या है, फैगोसाइटोसिस करेंगे। जैसे जो हमारी क्या कर रही थी, न्यूक्लियस जो है फैगोसाइटोसिस कर गई थी। क्लियर? मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस प्रोड्यूसेस इंटरल्यूकिन 1। अब आगे जो ये हमारे दोनों मैक्रोफेजेस और मोनोफेजेस हैं, दे विल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1। और ये जो इंटरल्यूकिन 1 है, आगे 3 काम करता है। इट एक्टिवेट्स टी लिम्फोसाइट, आगे जो हम लिम्फोसाइट डिस्कस करेंगे उनको एक्टिवेट करता है। इम्यूनोग्लोबिन यानी कि ग्लोबिन्स को हमारे लिवर के अंदर सिंथेसाइज करता है ताकि जो है इम्यूनिटी बनी रहे। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर थैलेमस पे जाके क्या है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। यानी कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बेसिकली इंक्रीजेस due to the production of interleukin 1. So this is all about our monocyte. Monocyte है क्या? It is a type of a granulocyte जिसके अंदर क्या है, एक ही बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किडनी बीन शेप या हाफ मून शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, इट आल्सो एक्ट लाइक अ मैक्रोफेज और फैगोसाइटोटिक सेल। ओके, तो इंटरल्यूकिन ये प्रोड्यूस करते हैं जो आगे फर्दर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी हमारे मोनोसाइट्स की, इट इज अराउंड 200 to 800 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, so this is all about our monocytes. Then we have our lymphocytes. These consist of 20 to 40% of our WBC, जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं, हमारे लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली स्मॉलर देन मोनोसाइट्स एंड हैव लार्ज न्यूक्लियस, यानी कि इनके भी जो क्या है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ओके, दीज आर रेंजेस फ्रॉम 8 to 10 माइक्रोमीटर, 8 to 10 माइक्रोमीटर इनकी जो है साइज होता है। ये ज्यादातर हमारे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनको जो हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। 3 तरह के हमारे बेसिकली लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ये बेसिकली कहाँ है, हमारे लिम्फोइड टिश्यू के अंदर बनते हैं। ये बोन मैरो में ना बनने की बजाय these are synthesized in our lymphocyte tissues, that's why they are known as lymphocytes. मोनो अग्रेनुलोसाइट्स में हमारे 2 तरह के सेल्स हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट्स और हमारे लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स को मोनोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोनोसाइट्स। ओके, और लिम्फोसाइट्स को हम लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे क्या है, लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। okay, there are basically 2 types, B lymphocytes and T lymphocytes। साथ साथ हमारे कौन से होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी। तो 3 तरह के हमारे मेन लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन कौन से, B lymphocytes, T lymphocytes and our natural killer cells। okay, so firstly let's start with our B lymphocytes। okay, B lymphocytes are the
specific lymphocytes which are matured in our bone marrow, यानी कि हमारी क्या है ये बोन मैरो के अंदर बनेंगे. These lymphocytes produces antibody. ये हमारी बॉडी में क्या है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, आईजीजी आईजीएम ये सब प्रोड्यूस करते हैं. ओके, इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडीज होती क्या है. ओके, तो ये एंटीजन, ये जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच ट्रिगर्स द इम्यून रिस्पॉन्स. जो हमारी इम्यूनिटी है, जो मोरल इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, तो दीज लिम्फोसाइट्स जनरेट ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ओके, जो हमारे एक्टिवेटेड बी सेल्स है, दे कैन बी अदर आवर प्लाज्मा सेल्स और आवर इफेक्टर सेल्स. यानी कि जो मैच्योर्ड हमारे बी लिम्फोसाइट्स है, इनको या तो हम क्या बोलते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स या फिर हमारे इफेक्टर सेल्स. ओके, अब जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स है, दे जनरली जनरेट्स आवर, these lymphocytes generally generates our humoral immunity. ओके, यानी कि जो मेडिएटेड जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अब जो हमारे क्या कहते हैं ये प्लाज्मा सेल्स हैं. ओके, दीज आर दी मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट्स, जो स्पेसिफिकली क्या है आगे बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी में बढ़ाते हैं. देन वी हैव आवर मेमोरी बी सेल्स. अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ओके, उस टाइम पे क्या है हमारे बी सेल्स एक्टिवेट हो गए, लेकिन इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद भी क्या है कुछ बी सेल्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं हमारे मेमोरी बी सेल्स. यानी कि दोबारा अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली क्या है हमारे बी मेमोरी सेल्स या मेमोरी बी सेल्स जो एक्टिवेट करते हैं. ओके, दीज सर्कुलेट इन द ब्लड, आइडेंटिफाई एंड एक्ट अगेंस्ट प्रीवियसली इन्फेक्टेड एंटीजन. क्लियर? यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, उस कंडीशन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हुई, तो उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी. और जो सेल्स काम करते हैं, कौन से काम करते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स. सो दिस इज अबाउट आवर बी lymphocytes. Next, we have our another type of lymphocytes which is known as our T lymphocytes. Okay, these cells are known as T lymphocytes because they cells are matured at the site of thalamus. So T lymphocytes इसलिए बनाते हैं because they are synthesis for mature in the thalamus of our body. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं हमारे T lymphocytes. These lymphocytes are basically responsible for cell-mediated immunity. Okay, हमारे जो B lymphocytes थे, they are responsible for humoral या antibody-mediated immunity, but T lymphocytes are responsible for cell-mediated immunity. Okay, तो आगे इनके फर्दर सब टाइप्स हैं, अलग अलग तरह की हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं. तो सबसे पहले हमारी होती हैं हेल्पर टी सेल्स. ओके, दीज आर द आवर फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर आवर हेल्पर टी सेल्स. ओके, दीज सेल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस साइटोटॉक्सिन. ओके, ये क्या करती हैं साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है. हेल्पर टाइल्स, दीज हेल्पर टी सेल्स हेल्प also help B lymphocyte in producing antibodies. यानी कि जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, तो इसमें जो हमारी हेल्पर टी सेल्स हैं ये क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी में साइटोकाइंस या जो स्पेसिफिक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इम्यूनिटी के लिए, उनको प्रोड्यूस करने में मदद करती है. द टी हेल्पर सेल्स ट्रिगर्स वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स. ये लिखा हुआ है ना, ये मेंशन किया हुआ है. द टी helper cells triggers various different types of immune cells to act against the antigen like macrophage, B lymphocyte and cytotoxic T cells. यानी कि कोई भी इंफेक्शन होगा तो उसमें सबसे पहले क्या है हमारे हेल्पर टी सेल्स या टी हेल्पर सेल जनरेट होंगे, एंड दीज टी हेल्पर सेल्स फर्दर help in the generation of another type of cells which is our T cytotic cells. And these T cytotic cells, these cells
अटैचेस टू दी टारगेट साइट, यानी कि कोई भी माइक्रोब्स है उसके पास जाके अटैच हो जाएंगे और क्या है स्पेसिफिक टॉक्सिन रिलीज करेंगे, ताकि जो है वो क्या है वो जो सेल है या इंफेक्टेड सेल है या कोई कैंसर सेल है या कोई माइक्रोब है उसकी डेथ हो जाए। तो सेकंड सेल कौन से हुए हमारे टी साइटोटिक सेल। ओके, तो these eliminate virus infected cells, tumors, cancers and also the foreign grafts। तो थर्ड तरह के हमारे जो होते हैं, थर्ड तरह के सेल्स होते हैं हमारे मेमोरी टी सेल्स। दीज आर दी स्पेसिफिक सेल्स, यानी कि कोई भी इंफेक्शन है, कोई भी इंफेक्टेड सेल है, अगर उसकी डेथ होगी उसके बाद भी जो है कुछ सेल्स जो है हमारे क्या कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जो कुछ स्पेसिफिक सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाते हैं, एंड दिस नोन एज आवर मेमोरी टी सेल्स। तो टी सेल्स बेसिकली हमारे तीन तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोक्सिक टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं हमारे इंफेक्शन के टाइम पे जनरेट होते हैं, ताकि जो है वो स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जनरेट कर सके। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, यानी कि साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं टॉक्सिन रिलीज करके सेल की डेथ या इंफेक्शियस सेल्स या कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर जो है कुछ स्पेसिफिक साइटोटिक टी सेल्स कन्वर्टेड इनटू आवर मेमोरी सेल्स, वो क्या करते हैं फ्यूचर के लिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जैसे हमारे मेमोरी बी सेल्स होते हैं, सेम उसी तरीके से क्या होते हैं हमारे मेमोरी टी सेल्स होते हैं। दिस इज अबाउट आवर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, और वो किस तरह से इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव आवर थर्ड टाइप ऑफ lymphocytes which is known as natural killer cells. These are also play an important role in immunity. Okay, they eliminate, ये देखिए लिखा हुआ ना, they play an important role in eliminating tumor cells and infection cells। ये क्या है, नॉर्मल सेल्स और हमारे कैंसर सेल को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। ओके, तो इंटरफ्यूरॉन्स जो है हमारे नेचुरल किलर सेल्स जो है इंटरफ्यूरॉन्स को रिलीज करते हैं। आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि थर्ड टाइप के हमारे जो है क्या है लिम्फोसाइट्स है वो कौन से होते हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स विच आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन आवर ट्रीटिंग ऑफ कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स, यानी कि ट्यूमर को जो किल करने में हमारे क्या नेचुरल किलर सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तीन तरह के बेसिकली हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। आगे हमारी ये जो बी लिम्फोसाइट्स हमारे प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में डिवाइडेड है। हमारे टी लिम्फोसाइट्स हमारे हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हमारे मेमोरी टी सेल्स में आगे फर्दर सब डिवाइडेड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लिम्फोसाइट। इसी के साथ हमने हमारे सारे क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स उनकी फर्दर सब टाइप्स डिस्कस कर लिए। देखिए फंक्शंस आगे हमारे लिम्फोसाइट्स के, दैट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट्स आर कंसर्न्ड विद इन्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर कंसर्न्ड विद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। नॉर्मल वैल्यू कितनी है 1500 से 3500 पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, यानी कि 1 लीटर के अंदर 1500 से 3500 क्या हमारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने जो है बेसिकली 5 तरह के हमारे WBC डिस्कस करे, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये उनके बारे में हमने कुछ उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनका क्या साइज होता है, क्या उनका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की शेप क्या है, ओके, उनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये हमारे न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स आर द टाइप ऑफ आवर ग्रेनुलोसाइट्स। वही लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या आते हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट्स। और ये जितने भी हमारे WBCs हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। कुछ जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं, कुछ जो है ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं, कुछ मैक्रोफेजेस बना लेते हैं, कुछ हिस्टामिन रिलीज करते हैं, कुछ हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, कुछ फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो अलग अलग इनकी जो फंक्शंस हैं, बट मेजर जो फंक्शन इनका क्या है, अलग अलग मैकेनिज्म से क्या करते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। ओके, तो ये देखिए इनका स्ट्रक्चर। न्यूट्रोफिल्स आर आवर मल्टीपल लोब, बेसिनोफिल्स यानी कि क्या है जो बेसिक डाई यानी कि ब्लू कलर के हो जाते हैं, और एसिनोफिल्स हमारे क्या है एसिडिक डाई यानी कि रेड कलर के होते हैं। मोनोसाइट्स यानी कि बहुत बड़े सेल,
बीन शेप न्यूक्लियस होता है, और देन हमारे लिम्फोसाइट यानी कि जिनके अंदर क्या न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारे 5 तरह के हमने इनके स्ट्रक्चर्स दिखा दिए, कौन से हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के। ओके, सो नाउ ये उनकी कुछ नॉर्मल रेंज है कि कितना कितना होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, इनकी क्या नॉर्मल रेंज है। देन वी हैव आवर third type of cells present in our blood, which is known as our platelets, or we can also call them as our thrombocytes. Okay, these are the very small non-nucleated disc, यानी कि इनके अंदर क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, these doesn't present nucleus, और इनका साइज कितना है 2 to 4 माइक्रोमीटर, यानी कि 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, डोंट हैव न्यूक्लियस। नॉर्मल रेंज इनकी कितनी है ये लिखी हुई है, यानी कि एक अगर हम नॉर्मली बात करें तो 1500 से 4000 होते हैं, और इनकी लाइफ स्पैन कितना है 8 to 12 डेज। हमारे रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना था 120 डेज, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना था कुछ दिनों तक का, यानी कि 2-3 दिन, और हमारे प्लेटलेट्स का कितना होता है हमारे 8 to 12 डेज। ओके, इनकी नॉर्मल वैल्यू वही हमने डिस्कस करी थी कि 2 लाख से 35 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, लाइफ स्पैन इनकी क्या है 8 से 11 दिन की होती है। इनका मेजर फंक्शन क्या है, दैट देयर आर न्यूमरस इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर thrombocytes or platelets. The main function of them is in the maintenance of homeostasis, यानी कि जो प्रॉपर मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, ओके ना, फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव मैकेनिज्म, पॉजिटिव मैकेनिज्म, उनमें क्या है इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यानी कि कभी भी ब्लड लॉस होता है, उसको कितना लॉस होना है, कितना कंट्रोल होना है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, दे आल्सो हेल्प इन दी डिफरेंट मैकेनिज्म्स की इन्फ्लामेशन में मदद करते हैं, ठीक है ना, कोएगुलेशन में मदद करते हैं। मेजर इनका क्या रोल है, दैट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि प्लेटलेट्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। इम्यूनिटी में भी मदद करते हैं, ठीक है ना जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बीएएस और एंडोथर्मिक ट्रोपिया में भी ये क्या है मदद करते हैं। तो अगर हम इनकी बेसिक बात करें तो फंक्शन क्या है, दैट दे फॉर्म प्लेटलेट्स, ओके, प्लग इन होम्योस्टेसिस, रिलीज केमिकल्स दैट प्रमोट वैस्कुलर मास एंड ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल है, क्लोट रिट्रैक्शन में, कोएगुलेशन में, इन्फ्लामेशन में, इम्यूनिटी में, लेकिन सबसे मेजर फंक्शन क्या है, दैट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेमोस्टेसिस, यानी कि ब्लड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड फ्लो, ब्लड क्लोट को कंट्रोल करने में कौन है हमारे प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड या फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो एक फटाफट जो हम इनका रिकैप कर लेते हैं हमारे सारे सेल्स का, इराइथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, कि इनका क्या क्या साइज है, इनका क्या लाइफ स्पैन है। ओके, यानी कि ये सब हमने मेंशन किया हुआ कि साइज कितना है, नंबर कितने हैं, प्रोपोर्शन कितना बनाते हैं हमारे सेल का, ठीक है ना, कितना इनका लाइफ स्पैन है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। देन उनके फंक्शंस और अदर डिटेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या है, इन्फ्लेमेशन और डिफेंस मैकेनिज्म में, एसिनोफिल्स एलर्जीज में और इन्फ्लेमेशन में, बेसिनोफिल्स भी एनर्जी इन्फ्लेमेशन में, मोनोसाइट्स इन्फ्लेमेशन में, लिम्फोसाइट्स इसमें करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम में। ओके, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं हमारे ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर फंक्शंस। विद दिस वी आर एंड विद द composition of our blood। अगर हम फिर से बैक करें तो ये सारे हमारे ब्लड के कॉम्पोजिशन जो थे हमने सारे डिस्कस कर दिए, दैट ये सब ये वाले, दैट आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के अंदर क्या थे हमारे प्रोटीन्स, अदर सॉल्वेंट, ओके। देन वी हैव आवर फॉर्म्ड एलिमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ आवर इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स आगे हमारे अलग अलग टाइप के थे, बेसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो वी जस्ट एंडेड विद द
composition of our blood and their functions, कि ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और उनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है. So this is all about today's lecture. In the next lecture we will continue with the ब्लड ग्रुपिंग, की जो हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अलोंग विद आवर ब्लड क्लॉटिंग, जो कोएगुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है वो डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.